Hello and very good morning to all my dear students. I welcome you all in this social science lecture. Welcome to your beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosif sir. Today we are going to study about handicrafts skills of Indian culture, in which we will study about leather industry, diamond, bead work and enamel work, jari work, metal work, wooden art, inlay work and akic work as well as painting. Okay. So first of all, let us start with the leather industry. Leather, it is obtained from the skin of dead animals and it was used for various purpose in ancient India. पहले के ज़माने में जब आर्टिफिशियल या तो सिंथेटिक फाइबर्स नहीं मौजूद थे तभी डेड एनिमल्स के स्किन में से जो वेसल्स बना के इस्तेमाल किए जाते थे उसको लेदर के नाम से जाना जाता था. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर. लेदर वॉज prominently used for making masak, a leather bag for fetching water, and kos, drum, dholak, tabla, and the bellows used by blacksmiths and various types of footwear, leather belts to tie animals, etc. यानी कि मेनली लेज़र का इस्तेमाल जो है वो मशक जिसके अंदर पानी भरा जाता है, ढोलक, तबला, उसके अंदर जो ऊपर का मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है. और मेजरली अभी के ज़माने में ओरिजिनल जो लेदर होता है वो फुटवेयर या तो बेल्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. लेदर वॉज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज्ड ड्यूरिंग वॉर्स. कवच बनाने में इस्तेमाल किया जाता है कि जो जंग के समय काम में आता है. Leather industry had a prominent place in ancient India. Well-knitted mojdi of Rajasthan, shoes, leather-knitted purses, belts and other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. यानी कि प्राणियों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं कि जिसको डेकोरेशन में इस्तेमाल किया जाता है प्राणियों के लिए, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेदर का इस्तेमाल होता है. उसके बाद है डायमंड, बीड वर्क एंड इनेमल वर्क. इंडिया हैज़ अ 7,517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडिंग ऑल थ्री डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सो डायमंड्स एंड बीड्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी. बहुत ज़्यादा अमाउंट में अंदर हमारे पास हीरे जो है वो मिलने की या तो मोती मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है. There has been a wide use of gems and diamonds since ancient times. Since ancient time, a trade of diamond and beads were carried out through sea routes with different countries across the sea. Diamond-studded ornaments have been a great demand in foreign countries since long. The world-famous diamonds like Kohinoor and Great Mughal were found from India only. जैसा कि हम जानते हैं कि कोहिनूर और दूसरा हीरा जो है ग्रेट मुगल वो भारत में से ही मिले हुए थे. As Indians are fond of diamond and beaded ornaments, variety is found in great deal. Earlier rich and royal people used to wear diamond jewelry apart from gold ornament. सोना तो सदा के लिए है ही, लेकिन सोने के साथ साथ जो शौकीन लोग हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं हीरो का अपने गहनों के अंदर, diamonds, rubies, beads, emerald and topaz were used to adorn and beautify the thrones and crowns and jewelry like a bracelet and garland, etc. पहले के ज़माने में जो राजाओं के ताज थे उसके अंदर हीरे जवाहरात बिछाए हुए थे ताकि उसका मूल्य बड़ा ही ज़्यादा हो. बीड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. द ब्यूटिफुल बीड, तोरण, पछीत, पोट्स, बारी, ચાકડા, ડેકોરેટિવ કોકોનટ યુઝડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ સેરેમનીઝ, લગ્નનું નારિયેલ, ખાસ કરીને લગ્નના નારિયેલની અંદર મોતી દ્વારા જે આખું કવચ બનાવવામાં આવે એની અંદર મોતીનો ઉપયોગ સૌથી વધારેમાં વધારે થાય છે. ઈંઢોણી, મોડિયા, અ નેટ વિચ કવર્સ ધ માઉથ ઓફ બુલોક હોર્ન્સ, हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर, झूल आर नीटेड इन यूनिक आर्टिस्टिक वे. यानी कि मोती का इस्तेमाल जो है वो इन सभी मीडियम्स के थ्रू किया जाता है. इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम immemorial. India is the only country in the world where expertise can be seen in enamel work apart from the gold and silver work. Enamel work means the artistic skill of inlaying the bright colors like red, green, and blue in the gold silver ornaments like rings,
बैंगल्स, ईयरिंग्स, की चेन एक्सेट्रा। इनेमल वर्क का मतलब होता है कि सोने और चांदी के ज़वेरात के अंदर कलर का जो है वो वर्क करना, इट इज़ कॉल्ड इनेमल वर्क। एक्सपर्ट्स ऑफ इनेमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। इसके जो विशेषज्ञ है वो इन सारे शहरों के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है जरी वर्क। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। Golden and silver threads are woven with clothes and embroidery is done with gold and silver threads to decorate the clothes. सोने और चांदी के तार से कपड़ों के अंदर जो है वो सिलाई की जाती थी और उससे डेकोरेशन किया जाता था। सूरत इज अ prominent place for जरी वर्क, नीटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी ऑफ जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी. Even artisans of Surat could make beautiful dresses like sari, panetar, karchoda, etc. bordered with jari if needed. यहाँ के जो कलाकार है सूरत के, वो इस कला से साड़ी, पानेतर और करचोड़ा के अंदर जरी काम करते हैं। उसके बाद है मेटल वर्क, एनग्रेविंग। मेटल वर्क को एनग्रेविंग भी कहा जाता है। Metal work is also a very old form of an art of India. Metal age began and developed after Stone Age. पाषाण युग के बाद ताम्र युग जिसे कहा जाता है, मेटल एज शुरू हुई। The artisans of Lothal made different weapons like sickle, drill and needle etc. with copper and bronze. Moreover, they prepared utensils, ideals and pots. Arms and ammunition for wars were made up of metal. जो युद्ध के कुछ कुछ सामान है वो भी मेटल यानी कि धातु से बनाए जाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स एंड आइडियल्स, वेयरएज आयरन वाज यूज्ड टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स। लोहे का इस्तेमाल हथियार और औजार बनाने में किया जाता था, जबकि ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर का इस्तेमाल बर्तन और कुछ कुछ मूर्तियों के अंदर किया जाता था। वुडन आर्ट। Man, trees and forest are closely associated with each other. Initially, wood was used as a firewood. Later on for making weapons, construction of buildings and other construction work. शुरू में लकड़े का इस्तेमाल जो है वो खाना पकाने के लिए किया जाता था, लेकिन उसके बाद में उसमें से हथियार, बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन करने में और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन के काम है उसके अंदर किया गया। Gradually, wood was used for different purposes, like for making ideals, toys for children, wooden pillars, windows and doors, small huts on top of the terrace, thrones, chairs and grills. In this way, wood carving was developed. Wooden furniture like swings and toys of Idar and Sankheda in Gujarat are well known. संखेड़ा के अंदर जो लकड़े के झूले बनाए जाते हैं वो बहुत ही फेमस है। एक गुजरात का प्रमुख स्थान है कि जहाँ का फर्नीचर और झूले बहुत ही प्रख्यात है, विख्यात है। उसके बाद है इनले वर्क। Inlay work is considered to be very ancient art of India. Indian kings, emperors, rulers and royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, दामड़ी। दामड़ी यानी कि नाक में पहनने का एक गहना है। etc. were studded with precious gems like diamonds, pearls and rubies etc. Artisans were expert in the work of inlay art. Bikaner area of Rajasthan is more popular for inlay ornaments. यानी कि जेम्स, जो प्रीशियस जेम्स यानी कि बहुत ही मूल्यवान पत्थर होते हैं कि जो कुछ कुछ जगह से ही मिलते हैं, उसको जब ऑर्नामेंट्स के अंदर माउंट किया जाता है तो उस कारीगरी को कहा जाता है इनले वर्क। ओके। अकीक वर्क। अकीक इज़ अ काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन स्पेशली फाउंड इन वैली एरियाज ऑफ द रिवर। अकीक जो है वो बहुत ही मूल्यवान पत्थर है कि जो नदी किनारों के ऊपर मिलता है। इट इज़ चीफली शेल्डोनिक मिक्स्ड विद सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। कार्नेलियन इज मेन स्टोन विद सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर। ये अकीक के प्रकार है कि जिसके अंदर कलर वाले या तो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं और लाल कलर के होते हैं।
In Gujarat, various precious stones are available in big and small size at Ranpur and Surat. All these stones are sent to Khambat to mold into various beautiful ornaments with various designs. Beads and garland of stones are prepared by them. यानी कि इन पत्थरों को खंभात के अंदर प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है और वहाँ से ऑर्नामेंट्स के अंदर या तो उसको अच्छे से शेप दे के ऑर्नामेंट्स में इनले वर्क करने के लिए दिया जाता है. पेंटिंग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल हैंड आर्ट. ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन. सभी कलाओं में जो चित्रकला है वो सबसे प्रमुख है. पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स. ये एक ऐसी कला है कि जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो कलर्स और रेखाओं से. द एम ऑफ दिस आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. ये एक ऐसी इस कला का मुख्य ध्येय ये है कि अपने अंदर की भावनाओं को आप काल्पनिक या तो अकाल्पनिक रूप के पदार्थों को इमेजिन करके लाइन्स और कलर से बना सकते हो. We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old हड़प्पन culture. हमारे पास ये एविडेंसेस है कि 5000 साल पुरानी जो संस्कृति थी उसमें से भी हमें चित्रकलाओं के कई बेनमून पेंटिंग्स मिले हुए. Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. कई ऐसे मॉडल्स पेंटिंग के मिले हुए हैं कि जब हमारा पुरातत्व विभाग जो है वो काम करता है तो मिलते हैं. We have traces of the pictures of animals and birds in the cave painting of primitive man of Stone Age at भीमखेड़ा MP. स्टोन एज के समय का जो मानव था तभी भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रदेश है वहाँ की गुफाओं में से केव पेंटिंग यानी कि गुफा के चित्र मिले हुए थे जिसमें पशु और पक्षियों के अवशेष मुख्य थे. People used to draw geometrical designs and sketches, elephant, rhinoceros, deer and notable among them. यानी कि तभी के ज़माने के जो चित्र थे उसके अंदर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस ऐसे ऐसे स्केचेस और प्राणियों के चित्र जो थे वो मुख्य थे. Ajanta, Ellora are incomparable specimens of such paintings. Drawings, the sketches of swastik, picture Ganesha at the time of festivals and celebration is an old tradition of India. अजंता इलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र के अंदर आई हुई है उनके अंदर के जो पेंटिंग्स वो इतने बेनमून है कि उसमें तभी के संस्कृति के जो उत्सव है उसके अंदर किए जाने वाले पेंटिंग्स भी बहुत अच्छे हैं. रंगोली मेकिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया. जैसे हम दिवाली और नए साल के शुरुआत में हमारे घर के बाहर रंगोली करने का हमारा एक ट्रेडिशन है, एक हमारी संस्कृति परंपरा है, वैसे ही दक्षिण भारत के अंदर कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं कि जहाँ पे रोज़ रंगोली करके बाहर की जाती है. देन आफ्टर फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया. फाइन आर्ट्स का मतलब होता है ललित कला. एक हमारे हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों की कला होती है, दूसरी होती है फाइन आर्ट्स जिसके अंदर हम हाथों से कोई चीज़ नहीं बनाते लेकिन अपने अंदर के इमोशंस को जब एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सम इंस्ट्रूमेंट्स, थ्रू अवर एक्सप्रेशन, थ्रू अवर जस्टिस. ओके, इट इज़ कॉल्ड फाइन आर्ट्स. सिंगिंग यानी कि गाना, प्लेइंग खेलना यानी कि नृत्य, डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर यानी कि नाट्य कला इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर. Entertainment with moral education has been imparted since ancient times through dramas based on the greatest scriptures like Ramayana and Mahabharata. हमारे भारत देश के अंदर मनोरंजन के साथ साथ जो मूल्यों का शिक्षण है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है नाटक के द्वारा. और वो नाटक खास करके होते हैं रामायण के कुछ अंश होते हैं या तो महाभारत के कुछ अंश होते हैं जिसमें माँ बाप का सम्मान, पति और पत्नी के बीच का संबंध, ऐसे कई सारे, जैसे कि राम और सीता की जोड़ी है, राम और लक्ष्मण की भाईचारे की भावना, हनुमान जी और राम जी के बीच में
जो एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, जो रामायण के अंदर दिखाया जाता है, महाभारत के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो प्रसंग के जिसमें जीवन जीने का एक तरीका मिलता है, तो ऐसे कई सारे मोरल वैल्यूज़ को ये ड्रामा हमें सिखाते हैं. सो फाइन आर्ट्स इज होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द आर्टिस्टिक फील्ड ऑफ इंडिया. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं हमारा लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फाइन आर्ट्स की कैटेगरी में म्यूजिक, डांस और ड्रामेटिक आर्ट के बारे में पढ़ेंगे. तब तक थैंक यू.